Previous classes we were describing about the control of the voltage. As you know, the prime role of the power engineer is to control the voltage and frequency of the power network. Frequency is kept nearly 50 Hz, that is with the permission of plus minus 0.5 Hz. Similarly, voltage is controlled of 1 per unit with the transmission side variation of plus minus 5% and distribution side plus minus 10%. This is the mandatory requirement for any power engineer to be at the power station. And we have seen various methods of controlling the voltage, that with the help of, and more important to that is we know that why voltage is varying. It is because of the reactive power. If reactive power demand is more than the reactive power supplied, or we can say if the reactive power supplied is not same as of the reactive power demanded, because reactive power demanded changes continuously as the load changes, and load is not in our hand, it is continuously changing. So it means we have to continuously change, we have to continuously monitor the reactive power supplied and developed in the system. So reactive power, if we are not supplying the reactive power demanded, means if it is less than the demand, then voltage goes down. If reactive power supplied is more than the reactive power demanded, then voltage increase. Means in this way we have to control the reactive power supplied should be equal to the reactive power demanded, and we have seen it is done with the help of the excitation control. By making it as a over excited, we supply the reactive power. Then we have seen the shunt compensation, then we have seen the static VR compensation, then we have seen the STATCOM effect and synchronous condenser also, how they inject the reactive power into the system and voltage is maintained. Now question is, if we are not maintaining the reactive power, अगर हम reactive power supply, reactive power को control नहीं करें या reactive power उतना supply नहीं करें जितना कि required है, then what will happen? Suppose reactive power demand is 100 MVAR and you are supplying 80 MVAR, then what will happen? क्या होगा? What will happen to that? First of all, you know the voltage will go down, but how much further if you are not supplying? Again you are taking the 100 but you are supplying the 80, then what will happen? कौन बताएगा? अगर आपने रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करना, ये आपको पता लग गया रिएक्टिव पावर कैसा कंट्रोल करते हैं, लेकिन अगर नहीं किया तो आपको पता है कि थोड़ा वोल्टेज कम हो जाएगा, फिर भी नहीं किया, then what will happen? Even if you are not controlling the reactive power, or you are not matching the reactive power supplied equal to the demand, then what will happen? So voltage is continuously going down, and when it is continuously going down means from 1 per unit to 0.9, 0.8, 0.7, 0.5, and finally voltage will be the, finally what will happen? वोल्टेज वेरी लो प्रोफाइल वोल्टेज विल बी देयर. कभी कभी आपने देखा ना, जस्ट बल्ब ग्लो कर रहा है एंड देयर इज नो appropriate amount of energy is there. So it comes the situation of voltage instability. If reactive power supplied is not equal to the reactive power demanded, then the system will be not able to sustain and the instability will come. So voltage stability is defined as, अब क्या है वोल्टेज स्टेबिलिटी? क्या होता है? वोल्टेज स्टेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम, मतलब सिस्टम की अपनी एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू रिटेन वोल्टेज विद इन द परमिसिबल लिमिट विद द कंट्रोल ऑफ ऑल रिक्वायर्ड. अपने आप नहीं करेगा मीन्स आप जो भी डिवाइसेस हैं उनको वो लगे हुए हैं, दे आर इंटैक्ट. इन दैट केस वेदर इट इज एबल टू कंट्रोल द वोल्टेज or not. So it is the ability of system to retain voltage within the specific range plus minus 5% in the transmission side. Then and otherwise you can say it is a voltage instability can be defined as the, if the system is not able to supply the electric power sufficient as required, then system will be the, it is the inability. Instability means क्या?
it is the inability of the system to retain the normal position, then it is the voltage instability. So I think you might be understanding what is the voltage stability and voltage instability. Let us see voltage. तो कौन लगे Now you will see the equation wise how it is happening. So let for example, this is a voltage source. Although our transmission, this is the voltage source, say voltage of the source is Vs. At receiving end side, say it is a thermal power station Panipat, and here it is a Khadapur substation, Khadapur power meter station, and here receiving voltage is Vr. And load, also we know load is the P plus JQ, reactive power as well as reactive power. But in this case, in the beginning we are assuming load is also inductive. Load is also inductive, and the transmission line coming from Panipat to this place, this is although R plus Jx, the resistance is, resistance is very small as compared to the reactance. So let us assume only that it is only the reactance. Later on we can see the actual calculation also, but we assume only the transmission line is having reactance. So this is inductive load. So what is the phasor diagram of this? इसका phasor diagram क्या होगा? Phasor diagram or equation. First of all, you can write the equation for this. Equation क्या होगा इसका? Vs is equal to Vs, standing voltage Vs is equal to Vr, standing voltage plus J times I into S. ठीक होगा? So this can be written as Vs, Vr. And ये I, this is I flowing into the load. So J, you can write it as plus 90 degree. I ये इंडक्टिव लोड है, तो करंट कैसा होगा? This is the VR. What will be the current? Transfer of current will be this. Okay. And what will be the JIX? J is transfer of current equal to the inductive. So this is of minus 90 into X. So you can see Vs is equal to VR plus I into X. So you can see ये I है, so I into X क्या होगा? It is I and I into X. I into X means J times. So ये I है, I के perpendicular होगा I into X, J times I into X. This is I into X. Clear or not? अगर ये एंगल ऐसे होता ना, तो ये I into X इसी डायरेक्शन में होता, ये इसके परपेंडिकुलर होता. अभी ये तो इसके परपेंडिकुलर. JIX is perpendicular to the I. ये I है तो JIX will be this. So this is the voltage now Vs. Yes. From here also it is also clear. Vs is equal to Vr plus Ix. From the equation also it is clear. Vs is equal to Vr plus Ix. Okay. Now what is I? The I क्या? This current I. If the reactive power flowing in Q, so what is it? अगर I की वैल्यू कितनी होगी? If this is power consumed here in Q, what power consumed is inductive. Otherwise, if it is not inductive, so power is equal to VI cos phi plus VI sin phi. अगर ये कॉम्प्लेक्स पावर होता, if it is complex power, the power is equal to VI cos phi plus GI sin phi. लेकिन इसमें what is VI cos phi here? VI cos phi क्या आता ना? VI cos phi यहाँ क्या होगा? वैल्यू कितनी होगी? VI cos phi की वैल्यू है? Zero. Because it is 90 degree. So VI cos phi 90 is to 80. So this is 0 and VI sin phi. VI
साइन भाई क्या होगा, V into I होगा, because sin 90 is 90, sin 90 is 1, and this power क्या होगा, S is equal to Q, क्योंकि इसमें P 0 हो गया, P plus JQ, ये तो होगा Q, S is equal to P plus JQ, तो ये P 0 हो गया और J इससे कैंसिल होगा, तो Q is equal to V है, तो I क्या हुआ, what is I? I is equal to QI, okay? So here you can write Vs is equal to VR plus I is equal to VR. ठीक है, इस इक्वेशन में किसी को कुछ पूछना है? Because what we are trying to do, हम ये देख रहे हैं हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? What is our object? Our object is to maintain this VR. रिसीविंग एंड साइड पे हमारा रिसीविंग सेंडिंग क्या है, पानीपत थर्मल स्टेशन, रिसीविंग एंड क्या है, फाजिलपुर पे वोल्टेज मेंटेन रहे, ये देखना है। तो VR की वैल्यू फाजिलपुर पे VR रिसीविंग एंड वोल्टेज क्या है, इस पर हमें फोकस करना है। दैट्स व्हाई फ्रॉम दिस इक्वेशन, और कितना होगा वोल्टेज, इट कम्स फ्रॉम दिस इक्वेशन, इसी के तो पता लगे कितना वोल्टेज है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये मल्टीप्लाई किया दिस कैन बी रिटन एज ए VR स्क्वायर माइनस VR प्लस Q2F। इस इक्वेशन से ये पता लगेगा कि रिसीविंग एंड वोल्टेज कितना होगा। व्हाट इज Q, इसमें Q क्या है, व्हाट इज Q, रिएक्टिव पावर किसकी, रिएक्टिव पावर किसका Q, Q is the reactive power of the load, मतलब लोड की रिएक्टिव पावर अगर चेंज हो रही है तो उसके रेफरेंस में हमारा वोल्टेज रिसीविंग एंड पे ये चेंज हो रही है, तो ये कितना होगा, क्योंकि लोड ये तो हमारी ये वेरिएबल है, ये चेंज हो रही है, तो वोल्टेज में कितना इफेक्ट पड़ेगा। इक्वेशन देयर DS क्या है, सेंडिंग एंड वोल्टेज, ये कहाँ का वोल्टेज है, आज उसका थर्मल पावर स्टेशन पानीपत का वोल्टेज है। तो ये कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट, दिस व्हाट इज x क्या, x क्या कौन बताएगा, व्हाट इज x हियर, इस इक्वेशन में x क्या है, रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस ऑफ इसकी रिएक्टेंस है ये। अभी बताओ, आप बताओ इस चीज की रिएक्टेंस है एक्स, ये देखिए यहाँ बता दो, ये सब लिखा है, ये रिएक्टेंस एक्स, इस इक्वेशन में जो ये एक्स है ये किसकी रिएक्टेंस है, कॉइल कहाँ होती है, ट्रांसमिशन लाइन, कॉइल ऐसे बना दी है, कॉइल थोड़ी है, ये तो ट्रांसमिशन लाइन है जो पानीपत से सोनीपत के बीच में लाइन आ रही है, ये रिप्रेजेंटेशन है, कॉइल नहीं है ये इक्विवेलेंट टू इंडक्टेंस, जैसे ट्रांसमिशन लाइन आ रही है ना, उसका इक्विवेलेंट एक इंडक्टेंस होती है, लेकिन उसे ट्रांसमिशन लाइन कहेंगे, ठीक है। सो इट इज ए रिएक्टेंस, एक्स इज द रिएक्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो ये ट्रांसमिशन लाइन की रिएक्टेंस चेंज होगी, ट्रांसमिशन लाइन की रिएक्टेंस चेंज होगी लोड पे डिपेंडेंट है क्या, लोड कितना भी लो, जितनी रिएक्टेंस होती रहेगी, ऐसे ही सेंडिंग एंड वोल्टेज जितना है उतना फिक्स है, उन पर डिपेंड कर रहा है। अब इसका मतलब क्या है, ये VR रिसीविंग एंड वोल्टेज ये इस पर डिपेंड करेगा, Q पर डिपेंड करेगा, और दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, और ये इक्वेशन क्या है, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रिसीविंग एंड वोल्टेज VR क्या होगा, दैट यू कैन फाइंड आउट, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, VR इज इक्वल टू ये x स्क्वायर माइनस
ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, ठीक है नहीं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई कि नहीं? या क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है? तो बी आर क्या होगा बताना? कौन बताएगा? बी आर इज इक्वल टू इसमें बता दें एक्स इक्वल टू क्या होता है? एक्स इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इसी का अंडर रूट, ये तो होता है। अब वो नहीं बता रहा बी आर इज इक्वल टू माइनस दिस बी आर यस प्लस माइनस स्क्वायर माइनस 4 ठीक है? यह इक्वल टू bs by 2 प्लस माइनस ये हुआ हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज। ओके नाउ एंड क्यू इज 0। अब इसमें क्या है? क्यू चेंज हो रहा है, ये क्यू चेंज हो रहा है, रिएक्टिव पावर लोड ही चेंज हो रही है, तो क्यू चेंज हो रहा है। व्हेन क्यू इज 0 क्यू 0 है तो वोल्टेज क्या होगा? रिसीविंग वोल्टेज VS होगा VS either VS when Q is 0 तो VS और 0 और VS मतलब ये है या तो 0 होगा या VS होगा when Q is 0 ठीक है? यहाँ पे अगर Q 0 है तो वोल्टेज ये बी आर वोल्टेज या तो 0 होगा या बी एस होगा, ठीक है? ठीक है कभी ठीक है। और नाउ व्हेन दिस इंक्रीज, अब ये Q अगर बढ़ेगा, Q बढ़ेगा तो ये वैल्यू इसकी कोई वैल्यू आएगी। व्हेन Q विल इंक्रीज उसकी कुछ वैल्यू आएगी और इसमें से सब्ट्रैक्ट होकर जाएगा। एक लेते हैं, एक प्लस लेते हैं और माइनस ले लें। अगर क्यू इंक्रीज करेगा तो सपोज करिए एक बार आपने जब आपकी Q की वैल्यू bs स्क्वायर बाई 4Q हो तो br क्या होगा? क्या होगा बताओ? when 4qx is equal to bs स्क्वायर, हो गया तो br क्या हुआ? VS by 2 तो ये 0 था, ये bs था, bs by 2 मतलब ये ग्राफ बन गया। ये क्या बना? Q की वैल्यू प्लीज सी हियर, Q की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा लोड, Q मतलब क्या है? लोड, रिएक्टिव पावर लोड जैसे जैसे बढ़ेगा तो वोल्टेज हमारा रिसीविंग वोल्टेज ये कम होता जा रहा है। और ये यहाँ पे आकर क्या हो रहा है? Q की वैल्यू यहाँ पे कितनी Q की वैल्यू है? व्हाट इज Q हियर? bs स्क्वायर बाई 4Q। एट दिस इंस्टेंट Q इज इक्वल टू bs स्क्वायर बाई 4 लोड का नाम ही है, ये 4 है। जब Q की वैल्यू b स्क्वायर बाई 4x होगी तो ये हमारा, और ये क्या है? दिस इज द मैक्सिमम रिएक्टिव पावर। जिसके बाद वो आएगा इट इज ए मैक्सिमम रिएक्टिव पावर मींस Q मैक्स, ये मैक्सिमम रिएक्टिव पावर है। इसका मतलब क्या हुआ? वोल्टेज दिस सिस्टम, the system can supply this system can supply this maximum reactive power
लेकिन जैसे जैसे आप रिएक्टिव पावर बढ़ाते जाएंगे तो वोल्टेज भी कम होता जा रहा है। एंड आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन व्हेन वोल्टेज विल रिमेन हाफ, यहाँ पे 1 पर यूनिट है, सपोज दिस इज 1 पर यूनिट और यहाँ पे क्या होगा ये 0.5 पर यूनिट। इसके बाद क्या है, ये मैक्सिमम रिएक्टिव पावर। इसके बाद क्या है, इसमें देखिए रिएक्टिव पावर हमारी ये बढ़ाएंगे तो वोल्टेज कम हो रहा है, लेकिन रिएक्टिव पावर बढ़ाने की वजह कम कर दें। कम कैसे कर देंगे, कम कैसे करते हैं, बाहर से प्रोवाइड कर दो, कैपेसिटर के थ्रू, एसपीसी के थ्रू, स्टैटकॉम के थ्रू, तो नेट रिएक्टिव पावर डिमांड कम हो जाएगी। जब रिएक्टिव पावर डिमांड कम होगी तो वोल्टेज बढ़ने लगेगा। रिएक्टिव पावर डिमांड कम करने पर वोल्टेज बढ़ने लगे, मतलब नॉर्मल होने लगे, तो सिस्टम को क्या कहते हैं, स्टेबल। और अगर रिएक्टिव पावर डिमांड कम करने पे भी वोल्टेज नहीं बढ़े, रिएक्टिव पावर डिमांड कम करने पे भी वोल्टेज नहीं बढ़े, तो हमारा मतलब हम वोल्टेज हम नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो हो गया अनस्टेबल। इस पॉइंट के बाद हमारा सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। कोई भी वोल्टेज 1 पर यूनिट से है, जब आप रिएक्टिव पावर बढ़ाते चले गए तो जब 0.5 रह जाएगा, 0.5 पर यूनिट, तो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। उसके बाद ये वापस नहीं लौटेगा यहाँ वोल्टेज को, यू कैन नॉट मेंटेन द वोल्टेज। फिर दोबारा से आप 1 पर यूनिट यहाँ तक, तो क्या होगा, यहाँ तक क्या होगा, वोल्टेज रिएक्टिव पावर को कम करके दोबारा यहाँ ला सकते हो। लेकिन अगर इसके बियॉन्ड गया तो चाहे रिएक्टिव पावर कम करें या नहीं करें, वोल्टेज दोबारा से नॉर्मल नहीं होगा, सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल क्या होगा, वोल्टेज कम होता चला जाएगा। 0.5 के बाद कंटिन्यूसली आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इवन इफ यू वांट टू कंट्रोल करने जो कंट्रोल टेक्निक्स है ना, वो भी काम नहीं करेंगी। वो तभी तक काम करेंगी जब हमारा सिस्टम स्टेबल रीजन में था। उसके बाद वो कंट्रोल टेक्निक भी काम नहीं करेंगी और धीमे धीमे वोल्टेज अनस्टेबल हो जाएगा, वोल्टेज आपका 0 हो जाएगा, एरिया आपका ब्लैकआउट हो जाएगा। तो आपका एरिया ब्लैकआउट हो गया, उसका क्या इफेक्ट होगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दैट। अगर आपका एरिया सपोज करिए यूनिवर्सिटी में आपका रिएक्टिव पावर डिमांड बढ़ता चला गया, वोल्टेज आपका 220 या 110 आ गया, उसके बाद भी आपने कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, कंट्रोल वहाँ पे भी कंट्रोल होता है, साइड पे भी कंट्रोल होता है। कैसे कंट्रोल हो रहा है, रिएक्टिव पावर इंजेक्ट करके, रिएक्टिव पावर इंजेक्ट करके मीन्स आपने कैपेसिटर वगैरह लगा कर। और अगर वो नहीं किया तो फिर आप रहने के बाद में आप कंट्रोल करना चाहेंगे भी तो भी सिस्टम कंट्रोल नहीं होगा, पूरा सिस्टम ब्लैकआउट हो जाएगा। ब्लैकआउट होने से क्या होगा, उससे देखिए जब एक एरिया का वोल्टेज सपोज करिए एक यूनिवर्सिटी में आपका वोल्टेज तेजी से डाउन हुआ तो वो एरिया आपका ब्लॉकआउट हो गया। उसके बाद उसका इफेक्ट ये नहीं है कि कहीं यहाँ 0 हो गया दूसरी जगह 1 पर यूनिट बना रहेगा। नियर बाई एरिया उसका वोल्टेज डाउन होगा, फिर नियर बाई एरिया वोल्टेज डाउन होगा। ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विल टेक प्लेस, एक जगह का फिर दूसरी जगह का फिर तीसरी जगह का सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विल टेक प्लेस एंड within a short duration of time the entire area will be blackout, that is called the voltage collapse। जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होने से पूरा पता लगा पूरा हरियाणा का एरिया आपका वोल्टेज कोलैप्स हो गया और पूरा ब्लैकआउट हो गया, दैट इज कॉल्ड द वोल्टेज कोलैप्स। सो हैव यू अंडरस्टूड द व्हाट इज वोल्टेज स्टेबिलिटी एंड व्हाट इज वोल्टेज कोलैप्स एंड व्हाट इज वोल्टेज इंस्टेबिलिटी, उनमें फर्क समझ में आ गया। स्टेबिलिटी क्या था, एबिलिटी, सिस्टम की अपनी एबिलिटी, वो कहाँ तक थी, यहाँ तक एबिलिटी। तो वो आप एबिलिटी है, इसके पावर अगर आप कंट्रोल करेंगे तो वोल्टेज कंट्रोल हो जाएगा। इट इज द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू रिटेन नॉर्मल पोजीशन फॉलोइंग द डिस्टर्बेंस टू मेंटेन द वोल्टेज एट द नॉर्मली प्लस माइनस स्पेसिफिक रेंज। तो उस समय तक आपका सभी जो प्रोसीजर है आपकी वो आपके काम करेंगे। इसके बाद बियॉन्ड दैट सिस्टम इवन इफ यू वांट टू कंट्रोल यू कैन नॉट कंट्रोल, तो सिस्टम विल कॉल्ड एज अनस्टेबल एंड द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आफ्टर दैट बिकम द दैट लीड टू द वोल्टेज कोलैप्स। ओके, और इसके अलावा
देयर आर टू टाइप ऑफ स्टेबिलिटी, वोल्टेज स्टेबिलिटी एंड एंगल स्टेबिलिटी। अगर आपने एक्टिव पावर को कंट्रोल नहीं किया तो एंगल स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आती है। वोल्टेज को कंट्रोल नहीं किया, एक्टिव पावर आपने कैसा कंट्रोल किया था, लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल आपने पढ़ा हुआ है। एक्टिव पावर कंट्रोल नहीं किया तो फ्रीक्वेंसी डाउन होती थी, और रिएक्टिव पावर कंट्रोल नहीं किया तो वोल्टेज डाउन होता था। तो अगर आपने एक कंट्रोल नहीं किया, वोल्टेज कंट्रोल नहीं किया, तो ऐसा नहीं है कि केवल वोल्टेज का इफेक्ट होगा। आफ्टर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम वन इफेक्ट विल गो टू द अनदर इफेक्ट। वोल्टेज डाउन होगा तो फ्रीक्वेंसी भी डाउन हो जाएगा, मीन्स एंगल स्टेबिलिटी विल प्रॉब्लम विल कम। एंगल स्टेबिलिटी प्रॉब्लम को कंट्रोल नहीं किया, इट विल लीड टू द वोल्टेज स्टेबिलिटी प्रॉब्लम। तो एक सभी प्रॉब्लम एक दूसरे से लिंक है। यहाँ हमने सेपरेट क्यों आ रहा है, वाई इट इज सेपरेट, यहाँ पे क्यों नहीं पता लग रहा है रिएक्टिव पावर से फ्रीक्वेंसी में इफेक्ट पड़ रहा है, यहाँ क्यों नहीं पता लग रहा है, यहाँ पता लग रहा है रिएक्टिव पावर पर वोल्टेज भी असर पड़ रहा है। ऐसे ही जब आपको पढ़ेंगे एक्टिव पावर का, तो आप देखेंगे पी का इफेक्ट ओनली फ्रीक्वेंसी पे दिखाते हैं, उस पर नहीं दिखाते। क्यों, वहाँ हमने रिएक्टिव पावर के इफेक्ट को नेगलेक्ट किया हुआ है। यहाँ हमने देखो इसको यहाँ माना हुआ ओनली दिस इज प्योरली इंडक्टिव, देखिए इसमें कुछ रेजिस्टेंस भी होता है ट्रांसमिशन लाइन में। ऐसे ही लोड भी है, लोड को क्या ओनली इंडक्टिव, लेकिन लोड हमारा पी प्लस जे क्यू होता है। तो देयर इज इफेक्ट ऑफ वन इफेक्ट कॉजेज द इम्पैक्ट ऑन द अनदर इफेक्ट। तो आपका वोल्टेज स्टेबिलिटी का इफेक्ट एंगल स्टेबिलिटी पे, एंगल स्टेबिलिटी का वोल्टेज स्टेबिलिटी पे भी इफेक्ट होता है, लेकिन हमने इसको स्टडी सेपरेट किया है। ओके, नाउ वी विल सी ये जो इक्वेशन है, दिस इज आवर इक्वेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ वी विल सी हाउ द वी आर विल चेंज। ये तो देख लिया कि रिएक्टिव पावर से वोल्टेज चेंज हो रहा है, लेकिन रेट ऑफ चेंज क्या है, कितने रिएक्टिव पावर चेंज होने का वोल्टेज कितना चेंज हो रहा है, मतलब यू कैन फाइंड व्हाट इज द डी इफेक्ट ऑफ दिस डी वी आर बाय डी क्यू का रिएक्टेंस में कितना इफेक्ट है। सो वी विल डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू क्यू, रिएक्टिव पावर के रिस्पेक्ट में, एंड वी नो वी आर इज द फंक्शन ऑफ क्यू, दिस स्विंग एंड वोल्टेज इज द फंक्शन ऑफ क्यू। सो यू डिफरेंशिएट दिस, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो यहाँ क्या इक्वेशन क्या आएगी, डी वी आर, इसको डिफरेंशिएट करो, इसको करना तो क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो 2VR dVR बाई डी, ये ठीक है कि नहीं ठीक है। यहाँ इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया, फिर इसको कराएंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो क्या आएगा, क्या आएगा, ये माइनस वी एस और dVR बाई dVR बाई, और इसको विद रिस्पेक्ट टू क्यू करेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू 0। ठीक है, किसी को इसमें कोई डाउट है, कुछ पूछना है? तो फ्रॉम हियर देखो, इसको आप नोट कर लो, ये इक्वेशन नोट कर लो, ये नेक्स्ट पेज पर आएगा, फिर आपको ये कहाँ से आ गई। इसको डिफरेंशिएट किया तो ये इक्वेशन आ गई विद रिस्पेक्ट टू क्यू। इज दिस क्लियर और नोट? इसको नोट कर लो, पेज पर नोट करो, चलिए नोट। उसी तरह ds माइनस dVR सेम इक्वेशन है क्या नहीं, ये यस सर, दिस इज द सेम इक्वेशन जो अभी आपने नोट किया था, वही है क्या नहीं, वेरीफाई करो, नोट किया था, देखो ये होगा नोट, जो मैंने कहा इक्वेशन नोट कर लो, हैं सर? हाँ, आप कर रहे हो नोट? हाँ है।
From here, उसका मतलब ये आ गया क्यू चेंज होने पे स्लोप ये क्या बता रहा है जो हमारा ये कर्व था ये r/q इसके स्लोप को बता रहा है ये dVr/dq इसका स्लोप x y s ये इसका स्लोप हो गया और इसी को हम अपोजिट लिखना चाहें dq/dr dq/dr चेंज होने पे इसका क्या टच पड़ेगा यस मॉडल और आपने देखा था रिएक्टिव पावर मैक्सिमम रिएक्टिव पावर कितना था मैक्सिमम क्यू का क्या फॉर्मूला था हाँ क्या VS²/4 VS²/4L इट इज द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी टेकन फ्रॉम द सिस्टम उसके बाद सिस्टम क्या होगा अनस्टेबल हो जाएगा अच्छा और इस पे एट दिस पॉइंट ये मैक्सिमम पावर थी एट दिस पॉइंट VR की वैल्यू क्या थी व्हाट वाज VR VR is equal to VS/2 at this point VR is equal to VS/2 so this can also be written as a yes term for this if you want to write yes to VR 2VR whole square by 4x equal to मतलब मैक्सिमम पावर सिस्टम से जो ली जा सकती है दैट इज VS²/4x और उसको कहना चाहो तो VR²/x इतनी मैक्सिमम पावर हम सिस्टम से ले सकते हैं और सिस्टम क्या था सिस्टम आज मतलब ना प्लीज लिसन रिएक्टिव पावर जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे किस पर डिपेंड करेगा इस पे क्यू पे जब आप लोड के अकॉर्डिंगली क्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो ये वोल्टेज हमारा VR कम होता जाएगा VS की कम चले जाएंगे 0.5 जब रह जाएगा 0.5 ऑफ दिस तो मैक्सिमम रिएक्टिव उस समय क्या होगा मैक्सिमम रिएक्टिव पावर लेगा वोल्टेज 0.5 हो जाएगा उसके बियॉन्ड सिस्टम क्या होगा अनस्टेबल हो जाएगा अच्छा अब अगर हम देखें सपोज इसे शॉर्ट कर दो सपोज दिस इज शॉर्ट सर्किटेड हियर शॉर्ट कर दिया लोड को लोड इज शॉर्ट सर्किटेड आपका अब कितना रिएक्टिव पावर लेगा ये आंसर हाउ मच रिएक्टिव पावर इट विल टेक सबको दिखाना शॉर्ट सर्किट रिएक्टिव पावर बताना कितना लेगा लोड जैसे आपके घर में ये आपने लोड शॉर्ट कर दिया दोनों लाइन न्यूट्रल को दोनों मिला दिया रिएक्टिव पावर आपने मतलब लोड शॉर्ट हो गया शॉर्ट सर्किट हो गया तो कितना रिएक्टिव पावर लेगा उस समय इसके हिसाब से इक्वेशन के हिसाब से कौन बताएगा नेक्स्ट ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट व्हाट इज द रिएक्टिव पावर नहीं मालूम है नेक्स्ट हाँ तीनों में बताओ एनीबॉडी आपने यहाँ शॉर्ट कर दिया ये VS है ये X है कितना कितना इसमें क्यू आएगा इसकी वैल्यू क्या होगी आप
ये नहीं तो घुमा दे। ये दिया सर, ये ऐसे शॉर्ट कर दिया। ये तो पावर निकालना है, पहले आई निकाल लो और फिर ये कर दोगे तो पावर कितना आएगा? क्लासिकल्स को तो घुमा ना इसको। ये स्क्वायर बाई एक्स नहीं आया? ये जब शॉर्ट सर्किट कर देंगे वैसे ही पावर इक्वल टू दिया बी स्क्वायर बाई आर नहीं होता है। अगर आर होता तो बी स्क्वायर बाई आर है, एक्स है तो रिएक्टिव है, वो एक्टिव हो जाती पावर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर फॉर्मूला। और ये रिएक्टिव पावर तो बी स्क्वायर बाई एक्स है, शॉर्ट सर्किट जैसा भी निकालना जो आई इक्वल टू बी बाई एक्स और फिर आई इंटू बी, रिएक्टिव पावर आ गई। ठीक है कि नहीं? क्लियर? तो ये क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट रिएक्टिव पावर। और मैक्सिमम रिएक्टिव पावर कितनी थी? मैक्सिमम रिएक्टिव पावर कितनी थी? ये मैक्सिमम रिएक्टिव पावर है, यहाँ देख लो। So what is the relation? Short circuit reactive power is 4 times, है कि नहीं? 4 times of maximum reactive power। मतलब क्या हुआ? क्या मतलब निकला? शॉर्ट सर्किट रिएक्टिव पावर इज 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम रिएक्टिव पावर। ये तो कह रहा मैक्सिमम इतनी रिएक्टिव पावर सप्लाई कर सकता है। ये कह रहा शॉर्ट सर्किट के टाइम पे उसे 4 गुना दे सकता है। इससे मतलब क्या होगा? बट यू विल एक्सप्लेन दिस। इस बात का एक्सप्लेन कौन करेगा? हाँ भाई, इशू we will extend this concept. और जैसा कोई anybody can explain this how the short circuit reactive power is, इक्वेशन के हिसाब से तो आ गया ना, how the short circuit reactive power is 4 times to the maximum reactive power. Who will explain? इधर सर, anybody out of this? Anybody this side? मतलब ये है, जब ये ले रहा है शॉर्ट सर्किट हो रहा है ना, तब 4 गुना ले रहा है, लेकिन 4 गुना तभी ले रहा है जब फोर्स आ रही है। लेकिन मैक्सिमम क्यों थी? ये मैक्सिमम थी, मैक्सिमम उस सेंस में है कि इस समय तो सिस्टम स्टेबल है, इस समय सिस्टम स्टेबल रहेगा। 4 मतलब यहाँ तक तो पावर स्टेबल रहेगी मैक्सिमम रिएक्टिव पावर का, लेकिन उससे बियॉन्ड लोगे तो ये यहाँ पर अनस्टेबल हो जाएगा। अगर आपका सिस्टम शॉर्ट सर्किट कर दो, सिस्टम अनस्टेबल है, लेकिन यहाँ तक मतलब 1/4 ऑफ द शॉर्ट सर्किट तक तो सिस्टम स्टेबल रहेगा। उसके बाद पावर तो ले लेगा, लेकिन पावर ज़्यादा ले लेगा मैक्सिमम से, लेकिन वो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। मतलब इट इज द पावर अप टू विच सिस्टम इज स्टेबल। मैक्सिमम उस सेंस में है जब तक स्टेबल रहने तक मैक्सिमम है। ठीक है नहीं? ये क्या है? स्टेबल रहने तक मैक्सिमम पावर है, उसके बाद अगर पावर होगी तो सिस्टम अनस्टेबल होगी। Any question up to now? So the definition of stability. देखिए, you should have the differentiation of all the terms. Voltage control क्या है? Voltage क्या है? What is voltage? What is the meaning of control of the voltage? What is the meaning of voltage stability? What is the meaning of voltage instability? What is voltage collapse? इन सब की डेफिनेशन को अच्छी तरह समझ लें, और ये इक्वेशन के थ्रू क्या है क्या आपको समझना है। ठीक है? Thank you very much.